دس مانوا از اے ٹراما۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس نے سب کچھ کھو دیا، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، سب کچھ۔ اب وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے کھونے کو۔ اس کہانی کی شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو چھپا رہی تھی اور باہر گولیاں چل رہی تھی، لوگ مر رہے تھے اور درد سے چلا رہے تھے۔ پھر جب وہ لڑکا باہر آتا ہے، ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں۔ وہ ان لاشوں کے بیچ اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے اور اس کی ماں مری پڑی تھی۔ اس کا دماغ اس کے سر سے الگ ہو چکا تھا۔ وہ اس کا دماغ اس کے سر میں پھر سے لگاتا ہے لیکن کچھ بھی کام نہیں آتا۔ اس وقت اسے لگا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہ دنیا ختم ہو چکی ہے اور وہ وہی بیٹھے بیٹھے یہی سوچتا ہے کہ میری زندگی صرف ایک ہی چیز کے لیے بنی ہے اور وہ ہے ڈیتھ۔ اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آگے بڑھنے کا اور بڑھتے ہی رہنے کا، کیونکہ وہ صرف یہی کر سکتا ہے۔ وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے، پر ایک رات اسے ایک بس مل جاتی ہے جہاں پر وہ سوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی لڑائی اس کے سامنے آتی۔ پھر صبح جب وہ اٹھتا ہے، اسے وہاں پر ایک لڑکی ملتی ہے اور وہ دونوں بس ایک دوسرے کو گھورتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ بولنے کا ٹرائی کرتے ہیں لیکن کچھ بول نہیں پاتے۔ تبھی وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ لڑکا اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے۔ ہر جگہ گولیاں چل رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی رونے لگتی ہے پر وہ لڑکا نہیں روتا، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پھر سے بھاگنے لگتا ہے۔ پھر فائنلی وہ ایک سیف جگہ آ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو ہائی بولتے ہیں اور یہی سے ان کی جرنی شروع ہوتی ہے۔ یہ دونوں ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور جب وہ جنگل ختم ہوتا ہے انہیں ملتا ہے ایک روڈ۔ وہ لڑکی کہتی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لڑکا جواب دیتا ہے کہیں بھی، لیکن ایک بات تو ہے، یہ روڈ کہیں پر تو ختم ہوگی ہی۔ لڑکی پوچھتی ہے روڈ ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ لڑکا بتاتا ہے بس روڈ ختم ہو جائے گا، اور وہ دونوں صرف چلتے رہتے ہیں۔ پھر آگے جا کر انہیں ایک انسان ملتا ہے۔ وہ لڑکا کسی وجہ سے اس سے ڈر جاتا ہے لیکن وہ لڑکی نہیں ڈرتی۔ وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں لیکن وہ آدمی بھی ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ آگے جا کر وہ لوگ تھوڑا رکتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن وہ آدمی اس لڑکے کا پانی چھین کر پورا پی جاتا ہے۔ لڑکی اسے اپنا پانی دیتی ہے لیکن وہ لڑکا منع کر دیتا ہے کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ یہ بھی پی جائے گا۔ پھر وہ دونوں پلان بناتے ہیں کہ جب وہ انسان رات کو سو رہا ہوگا تو وہ وہاں سے چھپ کے بھاگ جائیں گے، اور رات کو وہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں۔ پر وہاں پر ایک بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے وہ انسان اٹھ جاتا ہے اور انہیں دیکھ لیتا ہے۔ وہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں، وہ آدمی بھی ان کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ اس لڑکی کو پکڑ لیتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور رونے لگتا ہے، اور اس لڑکے کا پلان فیل ہو گیا۔ پھر وہ سبھی ساتھ میں اپنی جرنی کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس لڑکی نے کچھ دنوں سے پانی نہیں پیا ہوتا تو وہ لڑکا اس آدمی کا دھیان اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ لڑکی پانی پی لیتی ہے۔ ایسا اس لڑکے کو لگتا ہے کیونکہ اس نے پانی نہیں پیتا اس لڑکے کے لیے۔ پھر رات کو وہ لڑکا سوچتا ہے کہ آج ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، پر وہ آدمی آج رات سوتا ہی نہیں اور انہی پر نظر رکھتا ہے تاکہ وہ بھاگے نہ۔ اگلے دن وہ اس لڑکی کو اٹھاتا ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، پر پھر بھی وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد انہیں وہاں ایک لیک دکھتا ہے۔ دونوں اس لیک کی طرف بھاگتے ہیں، پر وہ لڑکی پانی نہ پینے کی وجہ سے نیچے گر جاتی ہے۔ وہ لڑکا ایک بوتل میں پانی بھرتا ہے، اس لڑکی کو پلاتا ہے اور وہ اٹھ جاتی ہے، پر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ آدمی ایک زندہ فروغ کو کھانے لگتا ہے، پر یہ دونوں اسے پکا کر کھاتے ہیں۔ تبھی انہیں پتا لگتا ہے کہ وہ آدمی آگ سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ لڑکا ہر رات جا کر دیکھتا ہے اور آدمی نہیں سوتا، پر کب تک؟ اسے کبھی نہ کبھی تو کچھ ہوگا، اور ایک دن وہ بندہ فائنلی گر جاتا ہے۔ لڑکا آگے بڑھتا ہے لیکن وہ لڑکی نہیں، اسے اب کسی اور کو نہیں کھونا۔ وہ لڑکی اس کی مدد کرتی ہے اور ان سب کی جرنی آگے کنٹینیو ہوتی ہے۔ پھر ایک دن وہ آدمی اس بچی کو ایک فروغ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا سوچتا ہے کہ اس کی اور اس کی دوست کی دوریاں اب بڑھ رہی ہے، اور یہ سب ہو رہا ہے اس آدمی کی وجہ سے۔ یہ سب بہت ٹائم تک چلتا ہے۔ پھر ایک دن لڑکی اور وہ آدمی ڈانس کر رہے تھے۔ وہ لڑکا انہیں دیکھ کر بہت ہی اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ پھر کچھ دن سفر کرنے کے بعد انہیں ایک لاشوں کا ڈھیر ملتا ہے۔ وہیں پر اس لڑکے کو ایک چاقو ملتا ہے۔ رات کو یہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی بولتی ہے کہ ہم پوری زندگی ساتھ رہیں گے اس آدمی کے ساتھ۔ وہ لڑکا بھی اس آدمی کے ساتھ گل ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دن اسے ایک فروغ بھی دیتا ہے۔ پھر اگلی رات فل مون ہوتا ہے اور بہت ساری فائر فلائز ان کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، پر وہ آدمی ان کو ساتھ میں دیکھ لیتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، اس لڑکے کو بہت زیادہ مارتا ہے، اور وہ اس لڑکی کا ریپ کرنے ہی والا تھا، پر تبھی وہ لڑکا آتا ہے اور جو چاقو اسے ملا تھا اس سے وہ اس آدمی کو مارتا ہے، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ آگے جا کر وہ لڑکی پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو؟
वो बताती है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है। पर उसके बाद कोई उन्हें बेहोश करके किडनैप कर देता है और उन्हें एक सिटी में लेकर आते हैं, पर कोई स्नाइपर उन सभी को मार देता है, लेकिन वो उन बच्चों को नहीं मारता। जब वो दोनों उठते हैं वो एक कमरे में होते हैं। वो आदमी उन्हें कुछ पीने को देता है और पूछता है तुम दोनों ने आते वक्त किसी को जान से तो नहीं मारा? वो लड़का मना करता है। ये सुनने के बाद वो स्नाइपर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये दोनों यही सोचते हैं कि कम से कम ये इंसान तो हमें चोट नहीं पहुँचाएगा। इसके बाद ये दोनों उस स्नाइपर के साथ खाना खाते हैं। वो बताता है मैं तुम दोनों की मदद करूंगा, पर बदले में तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। वो उन दोनों को एक रूम में ले जाता है जहाँ से इस पूरी सिटी पर नजर रखा जाता है, और इन दोनों को काम देता है कि जो लोग यहाँ आए या जाए तो वो उसे इन्फॉर्म करे, ताकि जो भी आए ये स्नाइपर उन्हें मार सके। फिर अगले दिन वो लोग खाना खा रहे होते हैं। लड़की पूछती है क्या इंसानों को मारना गलत बात नहीं है? वो बताता है क्या तुम्हें पता भी है उन्होंने कितने लोगों को मारा है? जिनके पास हथियार होगा मैं जितना उन्हें मारूंगा उतनी ही ज्यादा ये दुनिया पीसफुल रहेगी, इसीलिए मैंने तुम दोनों को नहीं मारा क्योंकि तुम्हारे पास गन्स नहीं थे। पर वो लड़की इससे खुश नहीं होती। फिर रात को वो लड़का इस आदमी के पास आता है और कहता है मुझे गन चलाना सीखना है। वो थोड़ा सोचता है और बताता है ठीक है कल मेरे पास आ जाना तुम। फिर अगले दिन वो स्नाइपर आता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर वो लड़की मना कर देती है। स्नाइपर कहता है देखो मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज तुम मेरे खाना बनाने में मेरी मदद कर देना। और वो लड़की मान जाती है। फिर लड़की खाना बनाती है, लड़का गन चलाना सीखता है और पूरी सिटी पर नजर भी रखता है, और वो आदमी लोगों को मारता है। फिर हम उसी को देखते हैं जो खांसता है और उसके मुंह से खून आने लगता है, और हम देखते हैं इस सिटी के मैप पर बहुत सारे जगहों में डॉट्स लगे हैं। फिर अगले दिन वो आदमी उस लड़की के पैर पर पट्टी लगाता है। उस लड़की को पता चलता है कि ये आदमी एक डॉक्टर था पहले। वो बताता है हाँ मैं पहले एक डॉक्टर था और मैंने बहुत सी जानें भी बचाई हैं। वैसे तुम बड़ी होकर क्या करोगी? वो बताती है मुझे उस इंसान के साथ रहना है जिसे मैं पसंद करती हूँ। हाँ बहुत अच्छी सोच है ये। वो लड़की उसे भी अपने साथ चलने को बोलती है, पर वो आदमी मना करता है। वो लड़की उदास होती है, लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर रात को खाना खाते हुए वो उस लड़के से पूछता है तो तुम दोनों कहाँ जाने वाले हो? वो बताता है हम बस आगे बढ़ते चलेंगे। वो कहता है पर रोड कभी ना कभी तो खत्म होगी ही। लड़का बताता है नहीं हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो वो आदमी कहता है ठीक है पर ध्यान से जाना। तो कल ये दोनों यहाँ से जाने वाले हैं, इसीलिए वो आदमी इनका टेस्ट लेता है। उस लड़के को एक बंदूक देता है और उसके सामने एक आदमी बंधा हुआ था। स्नाइपर उससे कहता है उसके सीने पर एम करो, पर वो लड़का उसके पैर पर शूट करता है। तूने उसे मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारा कोई दुश्मन नहीं था। तुम्हें पता है ना अगर वो बच गया तो वो बदला लेने आएगा। जब ऐसा होगा तो मैं उसे मार दूंगा, पर अगर वो हमारा दुश्मन नहीं है तो मैं उसे क्यों मारूं? और स्नाइपर उसे गोली मार देता है। तुमने टेस्ट पास कर लिया। फिर ये लड़की जो किचन में काम कर रही थी उसे फ्रिज में एक इंग्रेडिएंट नहीं मिलता, लेकिन उसे जमीन पर निशान दिखते हैं जो एक रूम तक जाते हैं, और वो उन्हीं निशानों का पीछा करते करते एक रूम में आ जाती है जहाँ उसे वो इंग्रेडिएंट मिल जाता है, और उसे बहुत सारे लोग मरे हुए मिलते हैं, पर यहाँ पर एक इंसान जिंदा भी होता है। वो उसकी मदद करती है, उसे आजाद करती है और उसे ये भी बताती है कि जब वो स्नाइपर सो जाए तो यहाँ से भाग जाना। फिर रात को वो सभी खाना खा रहे होते हैं। वो आदमी पूछता है कि तुमने ये फ्रिज में जो सामान रखा था उससे बनाया है? और वो हाँ करती है, पर ये झूठ था। फिर रात के टाइम लड़की उस लड़के को सब कुछ बता देती है और वो उसे चेक करने जाते हैं, पर वो आदमी वहाँ नहीं होता, पर उनके पीछे खड़ा था वही स्नाइपर, और वो बताता है कि ये सब मेरा ही प्लान था और तुम दोनों जा सकते हो, अभी तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो ले जाओ। फिर सुबह वो दोनों निकलते हैं। उस सिटी से बाहर जाते वक्त वो देखते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ जिसमें सभी के पास वेपन्स भी थे। दोनों बच्चे उन्हें देखकर भागने लगते हैं, पर वो लोग इन पर अटैक नहीं करते क्योंकि इनका बॉस वही है जिसे उस लड़की ने बचाया था। सारी गाड़ियाँ उस सिटी में एंटर होती है। वो स्नाइपर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है, अपनी फैमिली की फोटो को देखता है। वो एक बटन दबाता है जिससे वो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर वो लड़का और लड़की अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। अपनी जर्नी में वो दोनों बहुत मजे करते हैं, पर एक रात उस लड़के की तबीयत बहुत खराब होती है और वो खांसता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा रोती है, और फिर हमें इस लड़की का पास दिखाया जाता है जहाँ वो एक बस में अपने फादर के साथ सफर कर रही थी विद सम अदर पीपल्स। फिर वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, पर वो बूढ़ा इंसान बार बार खांसता रहता। पर एक दिन वो बहुत ही ज्यादा खांसता है और एक जर्नलिस्ट को पता चलता है कि इस आदमी को एक इन्फेक्शियस डिजीज है और इसका सर्वाइवल रेट है 0.1%। ड्राइवर बस रोकता है, वो बूढ़ा आदमी उतरता है और वहाँ से जाने लगता है, पर उसकी वजह से और लोगों को भी इफेक्ट हुआ है, और फिर एक एक करके उन सभी को वो डिजीज होती है। पहले
पहले जर्नलिस्ट, फिर वो लड़की, फिर वो कपल्स, उसके बाद बारी आती है इस लड़की के फादर की। वो लड़की बहुत ज्यादा रोती है। उसका फादर उससे प्रॉमिस करता है कि मैं वापस आऊंगा, पर कुछ प्रोमिसेस हमेशा टूटते हैं। वो ड्राइवर उस लड़की का ध्यान रखता है, उसे बहुत कुछ सिखाता है और एक दिन उस ड्राइवर को भी कोई गोली मार देता है। वो लड़की बहुत ज्यादा रोती है, पर कुछ टाइम बाद उस बस के अंदर कोई आता है जो यही लड़का है। ये लड़की अपने पास्ट का सपना देख रही थी, पर जब वो सुबह उठती है वो लड़का एकदम ठीक होता है और वो दोनों फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। वो दोनों हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और वो लड़का उससे पूछता है कि बड़ी होकर तुम मुझसे शादी करोगी, और वो भी मान जाती है। वो फिर से अपनी जर्नी में निकलते हैं, पर रोड हमेशा एंड होती ही है। वो उस जंगल के अंदर जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक और लड़का और लड़की दिखते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। दोनों एक दूसरे को चिल्लाकर कहते हैं अपनी बंदूक नीचे करो, पर वो दोनों लड़कियां उन्हें शांत करती है। तभी एक मिसाइल आती है जिससे ये दोनों अपने अपने साथियों को खो देते हैं। वो दूसरी लड़की खुद को ही गोली मार देती है। वो लड़का वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठता है, फिर उठता है और अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करता है। एक काला समंदर, कुछ यादें, वो रोने लगता है और उसी समंदर में वो गायब हो जाता है। फिर वो कुछ सोल्जर्स को मिलता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा टाइम स्किप होता है जहाँ ये लड़का बड़ा हो चुका था। वो बिल्कुल अकेला है, अकेला खाता है, सोता है और एक दिन जंगल में उसे एक झोपड़ी मिलती है जहाँ एक कपल रहते हैं। तभी वो वहाँ आ जाते हैं। वो बंदा उन पर एम करता है, पर वो देखता है उस आदमी का एक हाथ नहीं है और लड़की की एक आंख। इन्हें देखकर उस लड़के को वही दोनों बच्चे याद आते हैं, पर वो उन्हें छोड़ देता है। ये देखकर वो लड़की उसे फ्रूट देती है, पर वो मना करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसके घर के बाहर वही फ्रूट मिलते हैं। बदले में वो उन कपल्स को फिश देता है। फिर ये दोनों बार बार इसके घर आते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कुछ वक्त बाद वो लड़की प्रेग्नेंट है, पर एक पानी की लहर जिससे प्रॉमिस फिर से टूट गया। वो बंदा बोलता है यही सच्चाई है, हम इसे बदल नहीं सकते, ऐसे ही रोते रहो तब तक जब तुम और ना रो पाओ। नहीं, अब और नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो भागता है और उसी डार्क समंदर के अंदर कूदता है जिससे वो खुद को नहीं बचा पाया था, पर इस बार वो उस आदमी को बचा लेता है और वो कहता है चलो चलते हैं, पर कहाँ? और अंधेरा उन दोनों को घेर लेता है, पर एक रोशनी आती है और वो दोनों समंदर के बाहर आ जाते हैं। फिर उन कपल की एक बेटी होती है जो इस आदमी को ग्रैंडपा बुलाती है और उसके पेरेंट्स भी जिंदा हैं। फिर ये बंदा फिशिंग के लिए जाता है जहाँ वो खुद को देखता है जो डूब रहा है, पर इस बार वो खुद को बचा लेता है। एंड विद दिस ये मानवा एंड होती है। कमेंट्स में बताओ ये मानवा आपको कैसी लगी और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।